Hello dear children, I extend a very warm welcome to all of you in my English video class. I'm sure children you all are doing good. You all are happy, healthy and safe in your homes. Do take very good care of yourself children. Keep yourself protected. Take all the necessary precautions. Follow all the safety rules and all the safety precautions. Stay safe, stay healthy and stay happy children. We are doing lesson number 7, that is a fun weekend in our main course book. So children, please take out your main course book, Wordsworth English Reader, and turn to page number 70. We have started with the exercises of this lesson. So here I am with another video from the exercises only. Lesson सबको मालूम था, lesson सबको मालूम है. Then we have started with comprehension exercises. The first was question answer and second was fill in the blanks. Comprehension exercises का main aim क्या है? To check your understanding of the lesson. How much have you comprehend? आपने कितना lesson को समझा? अगर आपने lesson को समझा है, then only you can answer the questions or you can complete the sentences or you can choose the correct option. Comprehension में जो भी exercises हैं, आपने उसको जब तक अच्छे से आपको lesson समझ में नहीं आएगा, you will not be able to do the exercises. Okay? So first we have done question answers. Second we have done fill in the blanks. On page number 70. Page number 70 in your main course book. C. Now we will start with exercise C. C is many naming words are used in the lesson. Okay, in this lesson we have seen, जब मैंने पूरा lesson फिर से explain किया तो मैंने उसमें बताया naming words हर एक पैराग्राफ में कौन कौन से naming words हैं, what are the verbs, that is action words, what are the describing words, what are the prepositions. So in this lesson बहुत सारे naming words हैं and बहुत सारे prepositions हैं. Okay, so you can see a grid here. ये grid आपको सबको दिख रहा है, ठीक है? 12 of them are hidden in the word maze given below. M-A-Z-E, maze word का मतलब होता है भूल भुलैया, मतलब जिसमें थोड़े से आप कंफ्यूज हो जाओ. जैसे लखनऊ में भूल भुलैया अगर कहीं किसी भी जगह पे देखा होगा तो यू कैन कंफ्यूज. देयर आर सो मेनी वेज, इतने सारे रास्ते होते हैं, कहाँ से अंदर आए थे, कहाँ से निकलना है, वी टोटली गेट कंफ्यूज. तो उसको कहते हैं मेज, ठीक है? तो ये एक वर्ड मेज है, मतलब एक स्क्वायर में आप देखोगे बहुत सारे अल्फाबेट्स लिखे हैं. अभी इसमें कुछ एक बॉक्सेस में सम अल्फाबेट्स आर रिटन एंड इन सम बॉक्सेस कैपिटल एक्स इज रिटन, ओनली कैपिटल एक्स, और बाकी बॉक्सेस में अलग अलग अल्फाबेट्स हैं. ओके, कलर द स्क्वायर्स मार्क्ड क्रॉस एंड देन राइट डाउन द वर्ड्स दैट यू फाइंड. इसमें पहले क्या करना है कि जिस बॉक्सेस में एक्स बना हुआ है उसको हमें कलर करना है, ठीक है? एनी कलर यू कैन यूज, टेक एनी कलर एंड यू हैव टू कलर दैट बॉक्स विथ एनी कलर, ठीक है? तो जिस बॉक्स पे स्क्वायर एक्स बना हुआ है उसको कलर करना है एंड उसके बाद जितने अल्फाबेट्स बचते हैं यू विल गेट 12 नेमिंग वर्ड्स. ओके, देन यू हैव टू राइट दोज वर्ड्स. सो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट आई विल मेक दिस वर्ड मेज ऑन द बोर्ड. ठीक है, पहले तो मैं ये वर्ड मेज बनाऊं, यहाँ से स्टार्ट करूं. आई होप फर्स्ट आई विल मेक द वर्ड मेज. ओके, यहाँ तो दिखेगा. अभी ये लाइन यहाँ पे ड्रॉ करूं. आई नीड सम प्लेस टू राइट ऑल्सो. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 10 columns and 12 rows. 1, 2. Children, line may not be straight. 3. Let me do one more thing. I can write English here. ठीक है, तो हमें एक थोड़ी सी स्पेस और मिल जाएगी. English. Okay, we will get some space. यहाँ पे
2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 बेटा लाइन सब टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, ओके, सो प्लीज डोंट माइंड. 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ज्यादा टेढ़ी हो गई. 8 9 and 10, okay, so 10 columns we can place this much and we need 12 rows. 1 हो गई, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12, okay. Now ये 10 कॉलम्स जो ऐसे लंबाई में बनते हैं एंड ऐसे जो बनते हैं इसको कहते हैं रोज. सो नाउ लेट मी राइट द अल्फाबेट्स. X X X, then B X X X X X X, first row, then S T R E A M X, then X X X C double O K I E S, then R E E X X X X X X X, then X X X X X, then B X X and F, then N C H X X T A B L E. First, children, I will make this word base and then we will write the words here, okay? Then A X X X E A G L E X N, M A S K S X X L X X C, then E X X X X X X, then O X X E, X X X X X P double O L X, X X X E, then N S E U, then D O, this is R H A X G X X X, okay. Now this word maze is complete. ये word maze पूरा लिख लिया मैंने. अभी इसमें से we will find out the words, okay. The squares with X written in them, जिन squares में X लिखा हुआ है उनको हम क्या करेंगे, उनको हम को कलर करना है. Since I do not have any color, मेरे पास तो मैं इस बोर्ड पे मैं कलर नहीं यूज कर सकती हूँ, तो I will just make lines with black color. ठीक है, ब्लैक कलर से मैं लाइंस बनाऊंगी एंड आफ्टर दैट वी विल फाइंड आउट द वर्ड्स. आप ऐसे भी आपको बहुत सारे वर्ड्स ऐसे भी समझ में आ जाएंगे, बट व्हेन यू क्रॉस द
बॉक्सेस विद एक्स रिटन इन देम, इजीली सारे वर्ड्स दिखाई पड़ जाएंगे, ठीक है, सारे वर्ड्स दिखेंगे. सो उसके बाद देन वी विल राइट द वर्ड्स हियर. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द एक्सरसाइज. फर्स्ट आई एम गोइंग टू कट ऑल द बॉक्सेस जिसमें एक्स लिखा है. पहले उनको सबको कट कर दे. वन, फर्स्ट रो में जितने भी एक्सेस हैं सारे. ओके, नाउ सेकेंड रो, देन थर्ड रो. जितने बॉक्सेस हैं जिसमें एक्स लिखा है, जितने स्क्वायर्स हैं, उनको आप कलर कर दोगे तो अपने आप आपको सारे नेमिंग वर्ड्स नजर आ जाएंगे, ठीक है. देन एक्स, 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 okay, 1, 2, how many x's are there? ये है, ये है, ये. Few more are left. Few more are left, children. After crossing these, then we will start writing the words. Okay, children. So now, since ये मैंने जितने स्क्वायर्स में एक्स लिखा है सबको मैंने काट दिया, यू कैन इजीली सी द वर्ड्स नाउ. आप बहुत इजीली वर्ड्स देख सकते हो अभी, ठीक है. सो नाउ वी विल स्टार्ट राइटिंग द वर्ड्स. ओके, फर्स्ट वर्ड आपको कौन सा इसमें दिख रहा है? विच इज द फर्स्ट वर्ड दैट यू कैन सी हियर? द फर्स्ट वर्ड दैट यू कैन सी इज, वी विल गो रो वाइज, ठीक है. अच्छा, नाउ टेल मी वन थिंग. हैज एनीवन सीन अ मेज? किसी ने, कोई अगर आप लोग में से अगर कोई, इफ एनीवन हैज बीन टू लखनऊ, वहां पे अगर भूल भुलैया देखा होगा तो दैट इज अ मेज. मेज को हिंदी में कहते हैं भूल भुलैया. यू एंटर फ्रॉम वन साइड, आपको लगता है लौटते समय भी हम इधर से निकलेंगे, बट देन यू गेट टोटली लॉस्ट. अंदर जा करके कौन सा रास्ता कहाँ जाता है, किधर से निकलता है, सब बिल्कुल भूल जाते हैं. एंड दैट इज व्हाई व्हेन पीपल गो इनसाइड, वहां पे जो गाइड होते हैं जो सारा कुछ दिखाते हैं उनके साथ जाते हैं, बिकॉज दे आर वेरी वेल वर्स विद द प्लेस. उनको सब चीज का बहुत आइडिया होता है एंड उनको पूरा रास्ते मालूम होते हैं. तो इसीलिए लोग जब जाते हैं भूल भुलैया में तो पीपल गो विद गाइड, कि जो उनको पूरा गाइड करेगा, पूरा दिखाएगा, निकालेगा, ठीक है. अदरवाइज बिल्कुल भूल जाते हैं, आप बिल्कुल भी अपने आप नहीं निकल पाते हो. सो दैट इज मेज. यहाँ पे भी इट इज लाइक अ मेज, कि जब जिन स्क्वायर्स में एक्स लिखा है उनको हम कट कर देंगे तो वी विल गेट द नेमिंग वर्ड्स. एंड 12 नेमिंग वर्ड्स आर हिडन. अभी जब हमने एक्स को कट कर दिया है तो यू कैन इजीली सी क्या है, स्ट्रीमर्स. देन वी कैन सी फर्स्ट, वी विल गो रो वाइज. स्ट्रीमर्स फर्स्ट रो में हमें दिख रहा है. देन वी कैन सी, what do we see? BALLOONS, balloons. Then we can see FENCE, fence. Then row wise हम देखें, first row is cookies. Then TREE, tree. Then BENCH, bench. Then TABLE, table. Then EAGLE, eagle. MASKS, mask. Then POOL, pool. GARDEN, garden. And HOUSE, house. Okay, so we can see so many words. Now we will write them. ठीक है, अभी इनको हम लिखेंगे उधर साइड में. Let us write the words, children. First we will see the words row wise. So which is the first word? The first word is STREAMERS. The first word is streamers. You can write it a little bigger.
second word is streamers. रो में और लिखते हैं. If you can see any other word, row wise. Second word is balloons. B-A-L-L-O-O-N-S. Balloons. Third word is F-E-N-C-E. Fence. Row wise above words हैं. Now let us see the words column wise. The first word is column wise cookies. C-O-O-K-I-E-S. Cookies. Then fifth word is T-R-E-E. Tree. Then sixth word, यहाँ पे क्या लिखा है? B-E-N-C-H. Bench. B-E-N-C-H. Bench. Then we can see table also. T-A-B-L-E. Table. Then we can see E-A. Eagle. Then we can see M-A-S-K-S. Mask. ये mask हमें दिख रहा है. Then 9th, 10th word M-A-S-K-S. Then we can see P-O-O-L. Pool. P-O-O-L. Pool. Then we can see G-A-R-D-E-N. Garden. G-A-R-D-E-N. Garden. And last word is H-O-U-S-E. House. H-O-U-S-E. House. Okay. So what are the words? Streamers, balloons, pens, cookies, tree, bench, table, eagle, mask, pool, garden, house. Okay. So these are the 12 naming words. So children, we have completed the comprehension exercises. Now next is grammar part. Next अभी है grammar का part है. ठीक है? Now I have explained parts of speech. मैंने separately पूरे parts of speech बताए हैं. Naming words, all these are nouns. Naming words मतलब name of any person, any place, anything. So these are all name of different things. Streamers है, balloons, pens, cookies, tree, bench, table, eagle, mask, house, garden, pool. Okay, these are all name of different things. These are all common nouns. Common मतलब किसी भी चीज का नाम. There are lot of proper nouns also in this lesson. Proper nouns में क्या क्या है? Proper nouns like Priya, Adit, Nitin, Aman, Mona. These are all naming words. Okay, these are all proper nouns. And in this lesson we have used lot of position words also. Position words, that is prepositions. So in grammar we will talk about prepositions, position words. अभी position words को grammar की language में क्या कहते हैं? Now you all know they are known as prepositions. Okay, so in this exercise a sentence is broken into two parts. ठीक है, एक sentence को दो parts में break किया है. Half the sentence is written in column A and half the sentence is written in column B. दो parts में divide किया है. Column A में sentence का beginning का part जो है that is written in column A. ठीक है, and half of the part is written in column B. और column B में जितने words आप देखोगे कि first word सबका blue से लिखा हुआ है. Blue color से लिखा है to highlight them. Okay. Now see the words which are written in blue. All these words they tell us the position of something. They tell us the place of something. किसी चीज की वो हमें place बताते हैं. Okay? कि क्या चीज कहाँ पर है. Now match the two columns to make complete sentences. इसको एक्सरसाइज को हम बात में करेंगे. पहले मैं orally बता रही हूँ. Words are given. एक सेंटेंस को टू पार्ट से ब्रेक करके आधा सेंटेंस एक कॉलम में, आधा सेंटेंस एक कॉलम में है. नाउ जो कॉलम बी में जो वर्ड्स हाईलाइटेड हैं, डिड यू नोटिस द वर्ड्स ऑन, ओवर, अंडर, टॉप,
into, inside, etc. etc. मतलब आगे। अभी सारे वर्ड्स को यहाँ पे लिखना पॉसिबल नहीं है, तो आगे etc ऐड करने का मतलब है कि ये सारे मतलब इनके अलावा अभी और भी वर्ड्स हैं। These words tell us about the position or where the people or things are. ये वर्ड्स हमें क्या बताते हैं? किसी चीज की पोजीशन, या हमें ये बताते हैं कि कोई भी चीज या कोई भी पर्सन कहाँ पर है। ओके, सो दे आर नोन एज पोजीशन वर्ड्स। ओके चिल्ड्रन, ओके, so these words tell us the position of any place or anything or any person. किसी भी पर्सन या किसी भी चीज की प्लेस बताते हैं। So they are known as position words. And now we know that position words are known as prepositions in grammar. ग्रामर में पोजीशन वर्ड्स को क्या बोलते हैं? ग्रामर में पोजीशन वर्ड्स को हम prepositions बोलते हैं। ठीक है, इस लेसन में देयर आर लॉट ऑफ नेमिंग वर्ड्स यूज। नेमिंग वर्ड्स दैट इज नाउन्स, कॉमन नाउन भी है, प्रॉपर नाउन भी है। Nouns, pronouns, prepositions, adjectives, verbs, adverbs, conjunction, interjections, all these 8 parts of speech are used in all the lessons, सारे lessons में हैं। ठीक है, in this lesson specifically आप देखोगे कि बहुत सारे इसमें naming words यूज हुए हैं। In this word base we have found 12 naming words. These are all common nouns, मतलब common ऐसी चीजों के नाम हैं ये। Okay, these are common nouns. और इससे प्रॉपर नाउन भी है, नेम ऑफ चिल्ड्रन, जो बच्चे खेल रहे हैं उनके नाम है, तो दे आर नेम ऑफ चिल्ड्रन, दे आर प्रॉपर नाउन्स। एंड लॉट ऑफ पोजीशन वर्ड्स। ठीक है, लाइक आई हिट, ये लेसन में जब हमने पढ़ा, ठीक है, व्हेन दे स्टार्ट प्लेइंग द गेम ऑफ हाइड एंड सीक, जब बच्चों ने हाइड एंड सीक का गेम खेलना शुरू किया तो सबने अपनी अपनी पोजीशन बताई। जैसे लाइक मम्मी अरेंज द स्नैक्स ऑन द टेबल, मम्मी ने स्नैक्स कहाँ पे अरेंज किया? टेबल पे। देयर वर मास्क, बलून्स एंड स्ट्रीमर्स हैंगिंग फ्रॉम द ट्री, कहाँ से हैंग कर रहे थे? ट्री से हैंग कर रहे थे। ओके, ही स्टूड एट द कॉर्नर, कहाँ खड़ा हुआ? एक कॉर्नर में। आदित्य हिड बिहाइंड द ट्री, आदित्य कहाँ पे छिप गया? ट्री के पीछे। प्रिया एंड मोना क्लाइंब अप द ट्री, कहाँ चढ़ गए? ट्री के ऊपर। एंड सैट ऑन अ ब्रांच, कहाँ पे बैठे? ब्रांच के ऊपर। ओके, अमन हिड इनसाइड द डॉल हाउस, वेयर डिड अमन हाइड? अमन हिड इनसाइड द डॉल हाउस। ओके, लीविंग द डॉल्स आउटसाइड, उसने डॉल्स को कहाँ छोड़ दिया? डॉल्स को उसने बाहर छोड़ दिया। आई हिड अंडर अ बेंच, वेयर? अंडर द बेंच, बेंच के नीचे। ओके, सो ऑल दीज वर्ड्स। प्रिया सॉ अ बिग ईगल फ्लाइंग ओवर द ट्री, वेयर वॉज द ईगल फ्लाइंग? द ईगल वॉज फ्लाइंग ओवर द ट्री, ट्री के ऊपर से ईगल फ्लाई कर रहा था। शी स्क्रीम्ड एंड क्लाइम्ड डाउन द ट्री, वो कहाँ आ गई? वो जल्दी से नीचे आ गई, क्लाइम्ड डाउन। एंड she ran along the fence, along is also a preposition, fence के साथ साथ। okay, it is telling us the place, कहाँ कैसे वो दौड़ी? fence के साथ साथ दौड़ी। and fell into the pool, कहाँ पे वो गिर गई? where did she fall? she fell into the pool, पानी के अंदर, पूल के अंदर गिर गई। okay, then we all rushed to help her. Nitin and Mona held her hands, rest of us pulled them. ठीक है, प्रिया could easily come out. Okay, so all the words, mummy wrapped her in a towel, किसमें रैप किया? टॉवल में। so these are position words. जैसे मैंने पढ़ाया था, जब मैंने अलग से prepositions पढ़ाया तो I explained that in, on are used to tell us the place, position of something as well as time. in and on जो है वो हमें टाइम भी बताते हैं एंड प्लेस भी बताते हैं। मम्मी रैप्ड हर इन अ टॉवल, किस में रैप किया? टॉवल में रैप किया। मम्मी अरेंज द स्नैक्स ऑन द टेबल, वेयर डिड शी अरेंज? ऑन। और मैंने बताया था कि इन एंड ऑन दे आर यूज टू टेल द टाइम ऑल्सो। इन का यूज करते हैं एंड ऑन का यूज करते हैं, मैंने बताया था। इन इज यूज फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, जैसे व्हेन वी टॉक ऑफ 1 month और 1 year और 1 hour। जैसे 1 hour बहुत लंबा ड्यूरेशन नहीं है, बट स्टिल 1 hour एग्जैक्ट टाइम तो नहीं है। लाइक आई विल फिनिश माई वर्क इन एन आवर।
सो इन मतलब 1 घंटे में मैं अपना काम पूरा कर लूँगा। एग्जैक्ट टाइम हमें नहीं मालूम है। आई वॉज बॉर्न इन जनवरी, सो जनवरी मतलब डेट आप नहीं बता रहे हो, इन जनवरी, ठीक है। रिपब्लिक डे फॉल्स इन द मंथ ऑफ जनवरी। सो व्हेन, जब टाइम पीरियड थोड़ा लंबा होता है तब हम क्या बोलते हैं, इन। एंड व्हेन वी टॉक ऑफ 1 month और 1 year, सॉरी एनी स्पेसिफिक डे और डेट, नॉट लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, जब हम एक स्पेसिफिक डे या डेट की बात करते हैं देन वी यूज ऑन। इंडिपेंडेंस डे इज ऑन 15th August, ठीक है। So in this lesson lot of preposition words are used, position words are used. So column A, half of the word sentence is given in column A and half is in column B. हमें क्या करना है, हमें दोनों को मैच करना है, ठीक है। So अभी मैं जैसे इसको verbally बता रही हूँ, written work we will do in the next class. Column A में क्या क्या sentence है, I hit, Priya fell, Adit hid, Mummy arranged the snacks, Mona climbed, the eagle flew, Nathan stood, Aman hid. Okay? And column B, behind the tree, on the table, under a bench, into the pool, inside the dollhouse, at the corner, up the tree, over the tree. Now see children, at भी जो प्रपोजिशन है, at is used to, यहाँ पे at को यूज किया है to tell the time, ठीक है। यहाँ पे at is used to tell the place, at the corner, where, corner, ठीक है। and at is used to tell the time also. at को हम time के लिए भी यूज करते हैं and place के लिए भी यूज करते हैं, ओके, ठीक है। so at the corner, up the tree and over the tree. सारे वर्ड्स का मीनिंग मालूम है। बिहाइंड मतलब पीछे, ऑन मतलब ऊपर, अंडर मतलब नीचे, इनटू मतलब अंदर, इनसाइड। इन आवर ग्रामर बुक चिल्ड्रन वी हैव लर्न्ड अबाउट इन, ऑन, अंडर एंड बिहाइंड, ओनली 4 पोजिशन वर्ड्स। हमने अपनी ग्रामर बुक में सिर्फ इन, ऑन, अंडर एंड बिहाइंड, सिर्फ 4 पोजिशन वर्ड्स के बारे में पढ़ा है, बिकॉज दीज आर वेरी कॉमनली यूज्ड, जो बहुत कॉमनली यूज पोजिशन वर्ड्स हैं, हमने सिर्फ उनके बारे में पढ़ा है। बट इन दिस लेसन एज यू कैन सी देयर आर सो मेनी मोर, और कितने सारे इसमें प्रीपोजिशंस यूज हुए हैं, पोजिशन वर्ड्स यूज हुए हैं। एंड दीज आर नॉट द ओनली वंस, इनके अलावा भी और भी बहुत सारे पोजिशन वर्ड्स हैं। तो अभी क्लास 1 के हिसाब से आपको जितना पता होना चाहिए बस उतना ही आपके बुक में है, ओके। एज यू गो इन हायर क्लासेस प्रपोजिशन तो वही रहेंगे, उसका जैसे मैंने बोला डिफिकल्टी लेवल आपका और बढ़ता जाएगा, ओके। सो इन दिस चैप्टर देखो हाउ मेनी, देयर आर सो मेनी पोजिशन वर्ड्स, बिहाइंड, ऑन, अंडर, इनटू, इनसाइड, एट, अप, ओवर, देन क्लाइंब अप, जैसे अप है तो अप एंड डाउन। क्लाइंब अप, कहाँ चढ़ गई, पेड़ के ऊपर। क्लाइंब डाउन, कहाँ से नीचे उतरी, पेड़ के नीचे उतर आई, ठीक है। हिट बिहाइंड द ट्री, ऑन द टेबल, सो दीज आर ऑल पोजिशन वर्ड्स, ये सारे भी पोजिशन वर्ड्स हैं। इनके अलावा भी और भी, जैसे बिटवीन बोलते हैं, रोहन इज सिटिंग बिटवीन राम एंड श्याम, तो कहाँ बैठा है, वो दो के बीच में बैठा है। सो लॉट ऑफ प्रपोजिशंस आर देयर, बहुत सारे पोजिशन वर्ड्स हैं। एज यू कैन सी कि पोजिशन वर्ड्स का मतलब क्या है, कि जो वर्ड्स हमें किसी भी पर्सन या किसी भी थिंग, द वर्ड्स विच टेल अस द प्लेस ऑफ एनी पर्सन और एनीथिंग, दे आर नोन एज पोजिशन वर्ड्स। उनको क्या बोलते हैं, पोजिशन वर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। एंड ग्रामर में उनको बोलते हैं, दे आर नोन एज प्रीपोजिशंस। मम्मी कॉल्ड अप ऑल आवर कजन्स टू आवर हाउस, वी हैड स्लेप्ट टुगेदर इन माई रूम, वेयर डिड दे स्लीप, कहाँ पे सारे बच्चे एक साथ सोए, in my room. It was an exciting day. Mummy arranging a party for us in the garden. Where? In the garden. Mummy had made yummy snacks and arranged them on the table. Where did she arrange everything? On the table. Okay? Made some special cookies for us.
Okay children, so we will be doing this exercise written work we will be doing in the next class, and in the next class we will be doing one more exercise which is based on prepositions, which is based on position words. ठीक है, position जैसे opposites भी जो हम बोलते हैं under, over, ठीक है, on, under, top, bottom, inside, outside. ठीक है, so these are also opposites हैं, they are all these words are position words. ठीक है, so I hope children this is clear to you all. Today we have done this exercise where इस word maze में हमें इतने सारे naming words को पता करना था. We had to find out 12 naming words in this word maze. This we have done, and prepositions की भी, position words की भी exercise we have done it orally. Now we will be doing the written work in the next class. So that is all for the day children. Thank you so much.